Hello everyone. You know that I am doing previous year questions of thermodynamics from GATE, IAS and IS exam. Today we'll see the question of engineering services, okay, and the topic will be first law of thermodynamics. Okay, so those who are from mechanical engineering background, you can get the advantage of this, and also those who has one of the subject as a thermodynamics, whatever you are studying, you can get the benefit of this. Okay, so this about myself. I did master from IIT Bombay and I'm a former mechanical engineering professor. Okay, so let's see some of the question from engineering services which already came in thermodynamics. Okay, so you can see here there is one figure is given. Okay, you can see A, D, B and C, like it is like cycle. Okay, you can either say 1 second, I will change the pen. Yeah, so you can use like this cycle or this cycle or this cycle. These all are closed cycle. Okay, so what they are asking, when a system is taken from A to state B, okay, A to state B along the path of ACB, fine, along the path of ACB, 180 kilojoule of heat flow into the system and it does 130 kilojoule of work. Okay, so they are following ACB, this path they are following, and the heat flow and work done is given for this cycle. They are asking how much heat will be flow into the system along the path ADE. Okay, इस वाले path के लिए they are asking what is the heat flow. Okay, if the work done along the path is 140. ठीक है, तो इस जो ADB के along जो work done है, it is 40. Okay, so you can see this. So change in internal energy of AB along the path ACB along the, देखिए अब इंटरनल एनर्जी जो होगी वो कॉमन होगी फॉर बोथ द साइकिल्स. ठीक है, वेदर इट इज़ ACB और ADB. ठीक है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है हीट फ्लो ऑफ ADB. तो हमें देखिए वर्क डन पता है बट इंटरनल एनर्जी नहीं पता है, तो इंटरनल एनर्जी हम लोग ACB से निकाल लेंगे. ठीक है, और जो इस वाले साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी होगी वही इंटरनल एनर्जी इस वाले साइकिल के लिए भी होगी. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है. They have calculated internal energy from A to B path ACB. Okay, ACB. So you can use first law of thermodynamics, that is dq is equal to du plus dw. ठीक है, तो वहाँ से internal energy will be dq minus dw. Fine. So heat दिया हुआ 180 and work done is given 130. You will get 150. So this is the internal energy. Okay, delta U, you can say that. Fine. Now what is the work done? No, heat flow they are asking. Okay, what is the heat flow for this path? Okay, ADB. Fine. So कुछ नहीं, अगेन हम लोग फिर से यूज़ कर लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw. ठीक है, dw हमें दिया हुआ है, वर्क डन 40, du हम लोगों ने निकाल लिया 50, दोनों को ऐड कर देंगे, विल गेट 90. ओके, सो द आंसर इज सी. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, अब एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल तरीके से. ये वाला जो पाथ है ACB, इसके लिए हीट दिया हुआ है एंड वर्क डन दिया हुआ है, बट इंटरनल एनर्जी नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे. और ये वाला जो पाथ है ADB, ये वाला जो पाथ है इसके लिए वर्क डन दिया हुआ है. ठीक है, और हीट फ्लो पूछ रहा है, तो जो हम ACB में हीट फ्लो निकालेंगे दैट विल बी कॉमन फॉर द ADB. ठीक है, अब बस वहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यूज़ कर लेंगे, dq इज इक्वल टू du प्लस dw. ओके, सो dw is given 40, du we have calculated 50. You can just add both, you will get heat flow.
Okay, so the answer is C. Okay, next question. देखिए इसमें इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन सिस्टम is a function of temperature along is given by the formula this. Okay, so internal energy, it is a function of time. Okay, okay, you don't see this now while reading the question. I have already given the explanation as well. Doesn't matter. Okay, we should know the concept. Okay, अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो ये दिया है नहीं दिया है आप आराम से निकाल सकते हो. Okay, if this system execute a process for which the work done by it per degree temperature is this, then heat interaction per degree temperature equal. कुछ नहीं, देखिए ये हमें इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, वर्क डन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है हीट, बस. ठीक है, तो कुछ नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. अब आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना, हमें आज इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी. ठीक है, अब डी ई बाई डी टी हम कहाँ से निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. ठीक है, आप ये दिया हुआ इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, यू विल गेट 0.25. ठीक है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, दिस विल बी 0.25. ठीक है, यहाँ से ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये वाला टर्म 0.25 हो जाएगा, तो डी बाई डी टी हम लोग को 0.25 मिल जाएगा. ठीक है, और डी डब्ल्यू बाई डी टी दिया हुआ है, दिस इज 0.75. दिस इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है, सो इट्स आई थिंक आई हैव मेंशन टाइम, इट्स एक्चुअली temperature. Sorry for my, it's a function of temperature. Okay, sorry for that. I was thinking time, but it is not actually time, it is a function of temperature. Okay, so that's why here the unit is Kelvin. Okay, sorry for my mistake. So that's why here the unit is per Kelvin. Now you know that dw by dt and de by dt. Okay, so now you know that. Okay, from first law of thermodynamics, like this equation, dq by dt is equal to de by dt, dw by dt, d by dt you know that 0.25, 0.25. Okay, 0.75, 0.75. If we add these two, we'll get 1. Okay, so the answer is D here. Okay, next, when a gas is heated at a constant pressure, the percentage of the energy supplied which goes as the internal energy of gas is more for a diatomic gas than for the triatomic gas, same for the monatomic, diatomic and triatomic gases, but less than 100%. Okay, 100% for all gases, less for triatomic gases than for a diatomic gases. देखिए इसमें जो आंसर होगा, व्हेन अ गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर द परसेंटेज ऑफ द एनर्जी सप्लाइड which goes as internal energy of gas is more for diatomic than the triatomic. Okay, so the answer is A. Okay, next question. ये देखिए PMM1 पे पूछ रहा है. So there is a fourth statement, they are asking the correct statement. Okay? The first law of thermodynamics is a law of conservation of energy. Yes, ये correct है. Perpetual motion of machine of forced kind convert energy into equivalent work. Yes, ये भी सही है. ठीक है. A closed system does not exchange work or energy with its surrounding. This is good. This is wrong. ऐसा नहीं, it's exchange actually. Energy, work on energy. The second law of thermodynamics stipulates the law of conservation of energy and entropy. नहीं, ठीक है, सेकेंड लॉ हमेशा एंट्रोपी की बात करता है. ठीक है, फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन होता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो तीसरा चौथा रॉन्ग है, तो ये सब गलत हो जाएंगे. हमारा आंसर हो जाएगा ए. ओके, देखिए यहाँ पे भले वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बट उससे मतलब नहीं है.
आप स्टेटमेंट पढ़िए, उसको समझिए कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता, जो भी आपका नॉलेज है उसके हिसाब से आप लैंड कर सकते। ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप कभी भी थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ओके, assertion is a question. If the enthalpy of a closed system decreases by 25 kilojoule while the system receives 30 kilojoule of energy by heat transfer, the work done by the system is 55 kilojoule. अब देखिए यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, the first law of thermodynamics, balance for a closed system is this. Okay, we'll see that. देखिए ये ओके, देखिए इसमें जो वो इसमें ओके, इफ द इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी जो होती है ना, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी सिस्टम का इंथैल्पी पूछ रहा है तो आप उसमें जितनी भी एनर्जी दी हुई सबको ऐड कर दो, दैट विल गिव द इंथैल्पी। ठीक है, सो अब इसमें क्या है, ये 25 किलो जूल दिया हुआ है और 30 किलो जूल दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इंथैल्पी मिल जाएगा 55 किलो जूल। ये सही है। ओके, फिर दूसरा, इसमें कोई फार्मूला की ज़रूरत है ही नहीं, इंथैल्पी की फार्मूला कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इंथैल्पी अगर बोल दिए, इट इज़ मतलब इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ओके, so just add whatever energy is given, you just add all the energy, it will give the enthalpy, and this is what it is, the first law of thermodynamics. ठीक है, एंड एंथैल्पी जो होती है वो एक्चुअली में फर्स्ट लॉ से ही आता है। ठीक है, तो सो दैट्स वाई ये एक्चुअली में डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, एंड एंथैल्पी एक्चुअली डराइव फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. So that's why the assertion is, reason is also correct explanation of assertion. So that's why the answer is A. ठीक है, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि बी ऑप्शन होगा, बट नहीं, जो इंथैल्पी डराइव होती है वो फर्स्ट लॉ से ही डराइव होती है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे SFEE स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है, उस पे पूछ रहा है क्वेश्चन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ बॉयलर। ओके, फॉर बॉयलर पूछ रहा है। सो बॉयलर, फिर टरबाइन, किसी भी चीज़ के लिए पूछ सकता है वो। ओके, एनीवे अभी तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बट फ्लूइड का मैंने कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, बट आगे आने वाले समय में ना थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ, प्रोडक्शन हुआ, सब के लेक्चर सीरीज़ में लेके आऊँगा। वो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ होगी। ओके, अभी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस चैनल। ओके, so okay, this is the one of the equation, h1 plus v1 by 2 gj जो भी होगी, q is equal to h2 minus h1, फिर c वाला ये है एंड d वाला ये है। ओके, तो या जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी, कैसे आता है, फिर कैसे डराइव होता है, तो आपका थर्मोडायनेमिक्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो देखिए, दिस इज नथिंग बट इज द एनर्जी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये जीरो की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, ये एक्चुअली में डी क्यू बाई डी डब्ल्यू को ज़ीरो बोल रहा है। फाइन, तो h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस gz प्लस डी क्यू बाई डी एम प्लस h2 प्लस v2 बाई 2 gz2 डी डब्ल्यू बाई डी एम। अब मान लो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, या ये ज़ीरो हो गया। ओके, और मान लो कि हमारा क्या इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्यू के टर्म में पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लो हीट सप्लाई है, ज़ीरो नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, वर्क डन ज़ीरो है, तो यहाँ से हमारा मान लो जो उसका डेटा है वो सेम है, ठीक है, वेलोसिटी भी सेम है, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट डी क्यू बाई डी एम इज़ h2 माइनस h1। ठीक है, तो बॉयलर के लिए हीट जो होगा दैट इज़ h2 माइनस h1। सो द आंसर इज B. Okay. Next question. A 4 kilowatt 20 liter water heater is switched on for 10 minutes. Fine.
the heat capacity Cp for water is 4 kilojoule per Kelvin. Assuming all the electrical energy has gone into heating the water, what is the increase of the water temperature? ओके अब देखिए कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है, Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी, बस यही हमें यूज़ करना है और कुछ भी यूज़ नहीं करना। ओके सारी चीज़ें दी हुई हैं। सो एनर्जी दी हुई है हमारी 20 किलोवाट, सॉरी 24 यहाँ पे 24 बोल रहा है। सो आई थिंक दिस विल बी 24, कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पे। नो इस मिस्टेक नहीं, देखिए 10 मिनट है, ठीक है, तो हमें इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा हीट जो क्यू होता है इट इज़ किलो जूल, ठीक है, जूल या किलो जूल। तो यहाँ पे वॉट में दिया है, तो अब 10 से इसको हमें वॉट को जूल में कन्वर्ट करना होगा। ओके सो इफ़ यू कन्वर्ट यू विल गेट 24, ठीक है। इसके बाद हमारा या दिस इज गिवन Cp दिया हुआ है 4, ठीक है, और 20 लीटर, ठीक है, वाटर वो दिया हुआ है, m की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, वो सारी वैल्यू रखोगे डेल्टा टी मिल जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आंसर इज टी। अब इसमें कैच यही है कि हमें इस चीज़ को Q को हमें किलो जूल में या जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डिपेंड ऑन दिस। यहाँ पे किलो जूल है, mCp अगर आप यहाँ पे 4 में रखा है, ठीक है, 4 रखा है, तो आपको ये वाला पार्ट Q को किलो जूल में ही रखना होगा। अगर आप जूल में रख रहे हो तो यहाँ पे इस जगह पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। सो यू विल गेट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके next question, I think last question for this video. An insulated tank initially contained 0.25 kg of gas with an internal energy of 200 kilojoule per kg. Additional gas with an internal energy of 300 kilojoule per kg and the enthalpy of 400 kilojoule per kg enters the tank until the total mass of gas contained is 1 kg. What is the final internal energy of gas in the tank? ठीक है, अब देखिए ये मिक्सिंग का क्वेश्चन है। ओके हमें अब चाहिए तो लाइक इसको मत देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सो you just see this like it is they are asking the final internal energy। okay so mixing में क्या होता है कि अगर u1 u2 m1 m2 दिया हुआ है, so after mixing जो final internal energy will be m1 u1 plus m2 u2 by m1 plus m2। okay this is the thing, इसको यूज़ करना है और आप निकाल लेना। okay so m1 is 0.25, u1 is 200, m2 is तो अब देखिए टोटल 1 है, तो अगर इनिशियल 0.25 है तो फाइनल 0.75 हो जाएगा, ठीक है, और वो हमारा जो है 300 दिया हुआ है। ओके बस आप इसमें रख दो, अब इसमें सब रख दो 0.25 200 प्लस ओके 0.75 इंटू 300 0.25 0.75 यू विल गेट 275। ओके आंसर इज बी। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला याद रखिए मिक्सिंग। ओके सो यू विल गेट आई मीन द फॉर्मूला इज m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इवन फॉर गेट के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके सारे फार्मूलोज़ को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर आपके फार्मूले नहीं पता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल द प्रॉब्लम। ओके अब फार्मूला उसके बाद फिर उसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उसके जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसको करिए। ये जो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं इट इज़ एक्चुअली द सब पार्ट ऑफ बिगर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वाइस वर्सा होता है, बड़े क्वेश्चन करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन करे रखिए
तो वो लिंक होते हैं, ठीक है। और छोटे क्वेश्चन को करने के लिए बड़े वाले क्वेश्चन की करिए तो वो भी एक तरह से लिंक होता है, क्योंकि वो सब पार्ट हो जाता है। ओके, तो उससे हमें उन छोटे छोटे क्वेश्चन करने से जितने छोटे छोटे फॉर्मूले सारे याद हो जाते हैं। तो हमें एक्चुअली में दोनों करना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्योंकि प्रीलिम्स भी देना है, मेंस भी देना है, ओके, गेट में भी फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े होते हैं गेट में, ठीक है। तो इस वजह से हमें दोनों में बैलेंस रहना है, नॉट ओनली द बिगर क्वेश्चन और द स्मॉलर क्वेश्चन।